Hello everyone. So let's begin the explanation of chapter 2 Self and Personality. This chapters cover a good amount of weightage in your board examination. So I will only cover all the important aspects which are under this chapter. So first of all, what is self? You know, self refers to our conscious experience, ideas, thoughts and feeling. सेल्फ एक सब्जेक्ट भी होता है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट भी होता है. सब्जेक्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज सेइंग आई डिड समथिंग. ठीक है, तो जो समथिंग है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड आई जो है वो एक सब्जेक्ट हो जाएगा. राइट. सो देयर आर बेसिक डेफिनेशंस हेयर like what is social identity, what is personal identity. You can take a screenshot from this video. What is self concept? It refers that the way we perceive ourselves, our experiences, our competencies, our abilities. It refers to self concept. Then self esteem क्या होता है? Our judgment about our value and self worth is called self esteem. Then moreover we can come across self efficacy. सेल्फ एफिकेसी जो होता है इट रेफर्स टू सेलेक्ट इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट सिचुएशन. एग्जाम्पल फियरफुल. सेल्फ एफिकेसी में हमें अल्बर्ट बेंड्यूरा का एक एग्जाम्पल मिलना है ऑब्जर्वेशन लर्निंग. वहाँ पे हमने बोबोडॉल एग्जाम्पल देखा था. In 11th we see that the child is beating the bobo doll and he is getting a reward, and in the second film he is beating the bobo doll and he gets punishment for that. Right. वो एक sort of example हम दे सकते हैं self efficacy में. Then what is self regulation? Self regulation refers to our ability to organize and monitor our own behavior. Self control is also a part of self regulation. Okay, see, there are 3 techniques of self-control and it is very very important. It is asked in the examination also. Self-control में 3 techniques हैं. पहली technique है observation of our own behavior, दूसरा है self-instruction और तीसरा है self-reinforcement. Okay, let's come to the Western and individual and Indian and Western concept of culture and self. See, in the Western view, जो self है, जो individual है, वो अलग होता है और जो सोसाइटी है वो अलग होगी. राइट. एंड इन द इंडियन व्यू द इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ. अंडरस्टूड. देयरफॉर in western view the boundaries are clearly different and they are clearly distincted from each other, but whereas in Indian view there is no nature of shifting boundaries like that. Also at the end the Indian self view is called as an collectivistic culture and the western view is called as individualistic culture. Okay, let's come to the features of personality and theories of personality. There are 2 theories of personality: type approach and trait approach. टाइप अप्रोच में हम ब्रॉड पैटर्न्स एक बिहेवियर का स्टडी करते हैं और ट्रेट अप्रोच जो है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं. राइट. ओके, then let's come to the type approaches. First type approach, if it is asked in the examination as type approaches to personality, then you will mention these all. Okay, कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है what are the features of trait approach. तो आप इसके लिए please refer to the NCERT. You will definitely see the section where all the characteristics and features of the trait approach is mentioned. Okay, हिपोक्रेट्स ने फर्स्ट टाइप अप्रोच दिया जिसका नाम था बॉडीली फ्लूइड या ह्यूमर. राइट. इसमें 4 चीजें आएंगी: सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, कॉलरिक एंड मेलनकॉलिक. यू शुड नो द नेम्स ऑफ दीज 4 फॉर श्योर. सेकेंड इज चरक संहिता. चरक संहिता के अंदर हमारा त्रिदोष आता है. त्रिदोष क्या है? वात, पत एंड कफ. राइट. वात क्या होता है? जो लोग एनर्जेटिक है. पित्त होता है जिन लोगों में बहुत ज्यादा एस्टीम, इंटेंस फायर. राइट. कफ इज दे आर वेरी काम एंड कंपोज टाइप ऑफ पीपल. लाइक ओके, नेक्स्ट इज त्रिगुणा. त्रिगुणा में 3 गुण होते हैं: सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण. यू कैन सी एज द पिक्चर इज ऑल्सो सेइंग, सत्व गुण में जो लोग होते हैं दे आर वेरी ट्रूथफुल, ओबीडियंट और वेरी वेरी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स. रजस गुण में दे आर वेरी डोमिनेंट, दे लीड द एम्पायर लाइक अ किंग. राइट. दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज. Third is tamas gun. Tamas gun mein they have anger, they have arrogance, they also have laziness, and therefore it leads to the hopelessness and depression. Now next is the third type approach of Sheldon.
शेल्डन की अप्रोच में आता है 3 थ्योरीज, दैट इज एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ क्या होते हैं? दीज पीपल आर वेरी फैट, सॉफ्ट, राउंडेड, रिलेटेड एंड सोशिएबल। Mesomorph में, as you can see the image of the person also, they are very muscular, right? They are very energetic. Then ectomorph, आपके कुछ friends भी ऐसे type of body को contain करते होंगे, like this part. This type of person is called ectomorph. They are very thin, they are very skinny, they are also very intelligent people, therefore they are called brainy. Okay, next is Carl Jung. कार्ल यूंग ने दिया इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ सोशलाइज नहीं करते, राइट? एंड एक्सट्रोवर्ट आर आउटगोइंग पीपल। दीज पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, हैप्पी विद अदर्स, ऑलवेज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज, राइट? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट अप्रोच ऑफ टाइप थ्योरी। दिस इज टाइप थ्योरी ओनली गोइंग ऑन। फ्राइडमैन एंड रोजनमैन, इन्होंने दिया टाइप ए एंड टाइप बी। And don't get confused, type C and type D is given by Morris. Okay, so let's come to type A. Type A क्या होते हैं? Always in hurry, बहुत ज़्यादा burden में रहते हैं काम के, और इसी वजह से उनको CHD हो जाता है। CHD is coronary heart disease. They also suffer hypertension. Type B is completely opposite of type A. आप इसमें simple लिख सकते हो, they lack type A traits. Right? Easy, I guess. Okay, then let's come to type C. They are prone to cancer. Type D is prone to depression. Let's come to trait approaches. Trait approaches are also very important from the exam point of view. The first is Gordon-Allport trait approach. यहाँ पे 3 types of trait दी हैं Allport ने. First type है cardinal. Cardinal होता है highly disposition. For example, महात्मा गांधी का non-violence, हिटलर का नाजिज्म, राइट? इनकी लाइफ पूरे टाइम इसी गोल के अराउंड रिवॉल्व रही, दैट्स व्हाई इट इज वेरी सुपीरियर एंड नोन एज कार्डिनल। सेकंड आती है सेंट्रल। सेंट्रल होती है लेस परवेसिव। ऑफन ऐसे लोग फ्रेंडली, हेल्पफुल, काम, नॉर्मल चीज़ों में इनकी जो मेजर ट्रेट्स होती है वो आइडेंटिफाई होती है। देन द थर्ड इज सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होती है दे आर वेरी लीस्ट जनरलाइज्ड, और इसमें हम एक इंसान की हॉबी, लाइक्स और डिसलाइक्स सब कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कम टू रेमन कैटल। रेमन कैटल गेव 16 PF थ्योरी, ठीक है? PF का मतलब होता है प्राइमरी फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे 2 ट्रेट्स आएंगी जो रेमन कैटल ने दी हैं, उनका नाम है सोर्स ट्रेट्स एंड सरफेस ट्रेट्स। सोर्स ट्रेट जो होती है वो स्टेबल है, सरफेस जो है वो थोड़ी अनस्टेबल है, राइट? सोर्स ट्रेट में हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी है, अंडरस्टूड? थर्ड ट्रेट अप्रोच इज गिवन बाय आइसेंक। आइसेंक ने 2 डायमेंशंस दिए, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी and extraversion versus introversion. I think they are very clear. You can take a screenshot from this image. Okay, let's move forward. The 5-factor model of intelligence, it is given by Paul Costa and Robert McRae. It is very important and it is highly asked in the examination. Now 5-factor model of personality में ocean आएगा. O stand for openness, C stand for conscientiousness and E stand for extraversion. A stand for agreeableness and N stands for neuroticism. ठीक है? They are very easy. Even if you took a glance at them, I don't think that it is no need to explain them, right? For example, if I talk about agreeableness, तो जो लोग इसमें स्कोर हाई करते हैं they are very helpful, they are cooperative, friendly, and जो लोग स्कोर लो करेंगे इसमें they are always very self-centered type of people. Let's talk about Freud. Sigmund Freud gave the level of consciousness, conscious, preconscious and unconscious. कॉन्शियस क्या होते हैं? जो लोग अपनी किसी भी चीज़ को अगर वो कर रहे हैं और फीलिंग्स, थॉट, एक्शन, दे आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ। प्री कॉन्शियस कि अगर वो थोड़ा ध्यान देंगे वो तभी उसके बारे में जान पाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी अवेयर ऑफ। अनकॉन्शियस मीन्स दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ देयर थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शंस। Okay, let's come to the next structure of personality. Very important. Id, ego and superego. Okay, id क्या होता है? देखो class, you should know the principles on which they work upon. This is very important. Id works upon immediate gratification. तो इसका principle जो है वो है
pleasure principle. Okay, then second one is ego. Ego क्या होता है? Let's talk about super ego first. Super ego is a moral branch of personality. That's why it works on morality principle. ठीक है. थर्ड आता है ईगो. ईगो जो होता है वो रियलिटी पे वर्क करता है, राइट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रियलिटी प्रिंसिपल. ठीक है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ बॉय नेम्ड टोनी. ठीक है. अब टोनी ने अपनी मम्मा से पूछा कि ओ मॉम कैन आई ईट द आइसक्रीम. हिज मॉम सेड नो, बट व्हाट ही सेड, नो आई विल ईट. ही इमीडिएटली टुक द आइसक्रीम एंड एट इट. क्या हुआ? उसने अपना प्लेजर बढ़ाया, राइट. उसने अपना ग्रेटिफिकेशन करा. तो दैट इज id. okay, second case, now Tony asked for permission, but उसकी मम्मी ने बोला देख लो, if you have to eat you can, but okay you are taking permission. ठीक है. तो उसने परमिशन ली क्योंकि उसको पता था अगर नहीं लूंगा परमिशन तो मुझे मार पड़ेगी. सिंपल एज दैट. तो उसको रियलिटी प्रिंसिपल हुआ. अगर मैं बात करूँ सुपर ईगो की, तो जो सुपर ईगो के अंदर फॉल करेगा, दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी संस्कारी इन नेचर, दे आर वेरी ओबीडियंट इन नेचर. अगर उसके बच्चे की मम्मी ने कह दिया बेटा आइसक्रीम नहीं खानी, ही विल से ओके मॉम आई विल नॉट ईट द आइसक्रीम. वो हो गया हमारा सुपर ईगो. ओके, लेट्स कम टू डिफेंस मैकेनिज्म. Defense mechanism are very very easy. I will just immediately finish it. Repression मतलब जब आपके anxiety provoking thoughts जो है dismissed हो रहे हैं. Okay, for example, children forgetting about how their parents died. Projection, दूसरों पे अपनी चीज को attribute करना. For example, I failed because of my friend. ठीक है, ये उसने project कर दिया दूसरे पे. Okay, denial. You said your friend stop smoking and he said no I won't stop. That is clearly denial. Reaction formation, किसी भी इंसान का रिएक्शन बदल जाना. For example, person with high sexual urges channelizes his energies into religious activities. This is a example of reaction formation. Rationalization, बिल्कुल irrelevant बात. For example, those grapes were probably sour anyway. अब वो उन तक पहुंच नहीं पा रही, दैट्स वाई शी इज सेइंग दिस लाइन. अनदर एग्जाम्पल, अगर मैंने पायलट पेन यूज करा होता तो मेरे फुल मार्क्स आते. आई डोंट थिंक दैट इट मेक सेंस, राइट. दैट इज रैशनलाइजेशन. ओके, लेट्स कम टू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ओके, ओरल स्टेज में क्या है? बैबलिंग, सकिंग एंड बाइटिंग. ओरल ग्रेटिफिकेशन माउथ से होगा. सेकेंड इज एनल स्टेज. एनल स्टेज में हमारा लिबिडो वर्क करेगा, इड एंड ईगो फॉर्म हो जाएगा, राइट. फैलिक स्टेज में जेनिटल्स का काम आएगा. यहाँ पे हमारे दो चीजें आएंगे, ओएडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ओएडिपस क्या था? ओएडिपस किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज ओन मदर, राइट. यहाँ पे मेल से वायलेशन और क्लैश करता है, राइट, एंड ही फॉल्स फॉर द अपोजिट सेक्स. ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अकर्स इन फीमेल. देयर वाज एन एग्जाम्पल दैट शी लव्ड हर फादर and therefore she told her brother to kill their mother, right. This was an example given in your NCERT. Then latency stage, puberty, child grows physically. genital phase में opposite sex जो है, people learn to deal with them. Okay, they learn the differences between male and females. Okay, then let's come to the difficulties in psychosexual development. fixation, regression, very important. देखो, फिक्सेशन जो होता है वो क्या होता है? जब एक, फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज स्टक्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टेज और वहां से वो हट नहीं पा रहा, दैट इज फिक्सेशन. रिग्रेशन क्या हो रहा है? अब वो इस स्टेज पे आ तो गया है बट वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा, बकायदा वो पीछे चला गया. ओके, तो वो रिग्रेशन हो जाएगा. ओके, लेट्स कम टू, दीज आर द पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस and I don't think I'll be able to cover it in this video. Let's immediately come to projective techniques. Okay, अब projective techniques के ये सारे features हैं. Kindly take a screenshot of it. Okay, the first projective techniques is Rorschach block test. 10 blocks होंगे, 5 black and white, 2 white red ink से और 3 pastel color से. ठीक है, यहाँ पे 2 phases आएंगे. पहला है परफॉर्मेंस प्रॉपर और दूसरा है इंक्वायरी. परफॉर्मेंस प्रॉपर में द सब्जेक्ट इज आस्क्ड व्हाट डू दे सी इन द इंक ब्लॉक. इंक्वायरी में दे आर आस्क्ड व्हाट थिंग्स दे विल डू व्हेन दे आर आस्क्ड टू ड्रॉ द पिक्चर, राइट. थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, इट इज गिवन बाय मॉर्गन एंड मुरे. इट इज आस्क्ड, ओके, ये एक पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है. ओके,
टैट इज अ पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट. टैट का इंडियन वर्जन उमा चौधरी ने अडॉप्ट करा था. ओके, देन कम टू रोजनवाइन्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट. रोजनवाइन्स पीएफ स्टडी भी कहते हैं इसे. इसमें क्या होता है, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू. ओके, ये एक सिचुएशन टेस्ट हो जाएगा. लेट्स कम टू सेंटेंस कंप्लीशन. वेरी इजी, बस हम सब्जेक्ट को बोलेंगे ये सेंटेंस है, इसके आगे आप भरो. देन ड्रॉ अ पर्सन. द सब्जेक्ट इज जनरलाइज्ड and he is told to draw any kind of figure they want to, and then we analyze the figure drawn by the subjects. Let's come to behavioral ratings. Behavioral ratings क्या होता है? It is a arena where people who know about the subject closely are asked to rate their behavior. यहाँ पे बस दो प्रॉब्लम्स आती हैं जो बिहेवियरल रेटिंग्स के लोगों को सफ़र करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट हैलो इफेक्ट. हैलो इफेक्ट क्या होता है? वन अनफेवरेबल ट्रेट becomes basis of judgment of the whole person. For example, हमने देखा कि अजय जो लड़का है वो बार बार ही लाइज. ओके, अब कोई भी चीज हुई तो एवरीवन सेड ओहो इट इज द थिंग डन बाय अजय. व्हाई? बिकॉज ही यूजुअली लाइज. ओके, सेकंड इज मिडल कैटेगरी बायस. रेटर्स प्लेस द इंडिविजुअल इन द मिडल ऑफ द स्केल. थर्ड इज सिचुएशनल टेस्ट. सिचुएशनल टेस्ट में क्या हो जाएगा? देयर इज अ सिचुएशन and people are told to make the other person aggressive and frustrated, and then they are told to analyze how that person reacted in that particular situation. Okay, I think I have covered most of the very important topics in this chapter, self and personality, and if you are able to understand and recall it in the time of examination, I am sure that you will fetch good marks in this particular chapter. Okay, thank you everyone, all the best.